Good afternoon, my dear kids. This is Chetan sir. So we are starting with the scope of physics. Scope of physics में बचा क्या था कल? The remaining part was relativity, atomic physics, nuclear physics, and quantum mechanics. Yeah, recording के लिए मैंने रख दिया है प्रियंका राठौड़. So तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं? हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं relativity term. ठीक है? Relativity क्या है? So basically, what is relativity? So relativity term is connected with the particular theory. ठीक है, तो particular theory के साथ connected है. ठीक है, so this theory explains, this theory what, this theory explains, क्या explain करता है? Explains the connectivity, the connectivity between two theories, between two theories. Okay, one theory, one theory, one theory that explains all about the phenomena, the phenomenas, okay, or events takes place, or events takes place in the presence, presence of gravity, है ना? In the presence of gravity. So what it is called? उसको क्या बोला जाता है? It is called as a general theory of relativity, है ना? General theory of relativity. So another theory क्या है? The phenomenas or event or events that takes place, that takes place in the absence of law of gravitation or simply gravity, है ना? or simply gravity. So what it is called? It is called as special theory, special theory, है ना? Special theory of relativity. So दोनों theories को बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया है? फ्रेम किया है. Okay, so two of the theories is constructed by number of scientists. So it, there will be a connection. So there will be a connection into these two theories. So the establishment of that connection between these two theories is nothing but general theory of relativity. Sorry, theory of relativity. तो इसको क्या कहते हैं? theory of relativity कहते हैं, है ना? दोनों का कनेक्शन जो एस्टैब्लिश करता है थ्योरी, उसको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं. एंड इट इज डन बाय आइंस्टाइन, एल्बर्ट आइंस्टाइन. तो इसको किसने दिखाया ये चीज, कनेक्टिविटी को? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने. ओके, सो दिस इज व्हाट. तो कोई भी घटना घटती है, से फॉर एग्जांपल इफ द सन इज मूविंग, if the sun is moving with respect to gravity, means in the presence of gravity of another star, okay, and you are describing with the help of this theory. ठीक है, इसके जो भी फ्रेमवर्क पुट अप किए रहेंगे with the help of those equation, if you are applying those equation with that incidents in the presence of gravity, that theory is called as general theory of relativity. And
if anything which is taking place in the universe, say for example, uh, quantum particles quantum particles are moving, and you are describing that phenomena with the help of uh, quantum mechanics equation. Okay, and you are describing with the help of quantum mechanics equation those phenomena in the absence of what? Gravity. वहां पे gravity नहीं है, वहां पे कोई force है. What type of force? Say for example, nuclear force. Okay, so such type of phenomena where the absence of gravity will be felt. तो दोनों का connectivity अगर एक किसी connection से establish किया जाए, उससे जो theory बनती है, that theory is called as theory of relativity. क्या मेरी बात clearly समझ में आ रही है? And इस theory में basically क्या होता है पता है? In this theory, you peoples will be going to establish the relation between different types of forces. What type of forces? Basically, four fundamental forces are there. One is gravitational force, second one is electrostatic force, the third one is strong nuclear force, the fourth one is weak nuclear force. If you establish the relation between these two forces, any two forces, तो उसको क्या बोला जाएगा? It is a part of general theory of relativity. क्या मेरी बात क्लियरली समझ में आ रही है? अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स का किसी भी फोर्स के साथ कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश करते हो, और एल्स यू विल फाइंड द रिलेशन बिटवीन ऑल ऑफ द फोर फोर्सेस, you will be you're going to find the path of where the universe has been started. तो अगर आपने चारों फोर्सेस के बीच में रिलेशन को एस्टैब्लिश कर दिया, तो यूनिवर्स का जो ओरिजिन है ना, the date you're going to find and how this universe has originated, तो वो सारी चीज सीक्रेट्स पता चल जाएंगे. बट इट इज नॉट as much as easy. तो till now, till today, only two forces, मतलब सिर्फ दो फोर्सेस में रिलेशन को एस्टैब्लिश करने के लिए पॉसिबल हुआ है. फॉर एग्जांपल, आई थिंक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, not electrostatic, electromagnetic force, probably electromagnetic force. Yeah, so electromagnetic, as well as one scientist is there from Pakistan, Abdus Salam. You just watch Abdus Salam, you just watch his achievement. So he tried to show the connectivity between two uh, fundamental forces. तो ये बंदे ने करके दिखाया है वो, from the Pakistan. Yeah, you're listening correctly. आप सही सुन रहे हो. Every time whenever we used to listen the term called Pakistan, we used to hear the bombings. ठीक है, कहीं पे बम उड़ रहे हैं, terrorist. But this fellow, इसको भी उन लोगों ने भगा दिया. He gone to Europe. I think he died there in Europe, not in Pakistan, because talent will not be respected into the Pakistan like countries. Is that clear, my dear kids? क्या theory of relativity clearly समझ में आई? क्या है? Shall I proceed further? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? Okay. Yeah. I explained it in a very brief mode. ये बहुत ही बड़ा कंटेंट है. मैंने जो भी बोला है ना, theory of relativity, it is not a smaller one. So बड़े बड़े साइंटिस्ट का पसीने छूट जाते हैं to understand this. ठीक है? So it is not as small as we think. अभी तक मैं पढ़ता हूँ और अभी तक मुझे लगता है कि I don't know anything from that. अभी भी लगता है कि मैंने कुछ भी जाना ही नहीं. So मैंने अब तक सिर्फ 100 पेजेस पढ़े हैं उसके, तो तब भी मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि चीजें हैं क्या. Fine. Anyhow, if you people are interested in physics, that is very much आपको बहुत ही क्या कहते हैं excitement देगा in future. Anyhow, so we will move to the next scope of physics. तो एक stream देख लिया हमने. क्या देखा? General theory of relativity. So the theory which establishes the relation between theory of relativity, it is the branch of physics uh, that deals with the systematic study between the uh, establishment of the relation between the general theory of relativity as well as special theory of relativity. ठीक है? Now atomic physics होता क्या है? This is also one of the scope of physics. So into the atomic physics हम लोग क्या पढ़ाई करने वाले हैं? Into the atomic physics, we used to study all about nucleus, okay, electrons,
ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है ना, एंड न्यूक्लियर फोर्स, एंड up to the some extent subatomic particles like proton and neutron also. Okay, so the study of all these things will be atomic physics, ठीक है ना. तो atomic physics में क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं? It is the branch of physics that deals with the systematic study of subatomic particles like um, proton and electron एंड न्यूट्रॉन, ठीक है. तो इसमें आप एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास एज वेल एज रेडियस ऑफ न्यूक्लियस एंड द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, द पोजीशन, द मोमेंटम, ये सारी चीजें पढ़ते हो. हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, like these things we used to study into the atomic physics. Are you getting my point or not, my dear kids? क्या मेरी बात आपको क्लियरली समझ में आ रही है? ये आपका एटम है ना, ये आपका एटम है. And you peoples used to think that ki atom is the smallest particle of the element which is indivisible as per John Dalton, Sir John Dalton. तो इस बंदे ने बताया था कि the size of the atom will be in the order between 10 raised to minus 11, 10 raised to minus 11 नहीं, 10 raised to minus 12 to 10 raised to minus 15 तक कह सकते हो. This is for small size atoms, बहुत ही छोटे साइज के एटम्स होते हैं ना, उसके लिए the order of the atoms will be in this size. For the मतलब जो diameter nucleus small size 10 raised to minus 15 radius छोटा उतना है तो 10 raised to minus 15 भी ज्यादा होता है यूजुअली, तो स्मॉलर साइज ऑफ द एटम्स के लिए उतना रहता है शायद. ओके, so but exactly will be 10 raised to minus 14 तक तो रहता ही रहता है. Okay, so this is the size of the atoms, size of the atom in the sense means diameter of the atom, ठीक है. तो चलो मान के चलते हैं 10 raised to minus 12 to 10 raised to minus 15. Consideration is considering things is not wrong thing, ठीक है. तो प्रॉपर थिंग भी देख लेते हैं. 10 raised to minus 14 तक तो सही रहेगा. 10 raised to minus 15 I think very smaller size atom. We'll see. Okay, listen up my dear kids. I'm going to draw because एक आपका रेंज लेना बहुत जरूरी है. The range of the atom is very much necessary. So this is nucleus. ये क्या है? This is nucleus. Okay, nucleus size will be always larger comparison with the atom, ठीक है. इसका जो maximum size रहेगा ना, the maximum portion of the atom will be is contained with nucleus, ठीक है. And I'm going to draw with the green color, green नहीं, blue color, blue color circles to show the orbit, ठीक है ना. So these are the orbits of what? Wait, नहीं, see, I'm drawing only two orbits of the atom with the brown color.
here is the electron, ठीक है, here is also electron, है ना. So two electrons is depicted into the diagram, and the red color is, you know, this is nucleus, इसको nucleus बोला जाता है. So अगर एटम का हमें डायमीटर पता चलता है तो वी कैन इजीली फाइंड आउट द डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस आल्सो, ठीक है. एंड द number of protons present inside, the number of neutrons present inside, it will be done into atomic physics as well as clearly into the nuclear physics, ठीक है. तो न्यूक्लियर फिजिक्स में ये ज्यादा हाईलाइट ना करते हुए द हाई एनर्जी पार्टिकल्स के बारे में बहुत ज्यादा स्टडी होती है. सो विल सी दैट, ठीक है. वेट, okay. So the red color is nucleus, is contained with nucleus, which is containing protons and neutrons. So number of protons is nothing but atomic number. So the masses of protons as well as neutrons is called as the number of protons carrying mass is called as atomic mass. क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई चीज को कंटेन करता है into the atom, that is contained with the mass of the proton, ये सबसे heavier होता है ना. So that is why the number of masses of the proton is called as atomic mass, है ना. ये सारी चीजें स्टडीज हम कहाँ पे करते हैं, एटॉमिक फिजिक्स में. फाइन. So is that clear, my dear kids? कोई confusion इसमें? So this brown color points are nothing but electrons, है ना. तो इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल वेलोसिटी, है ना, एंड द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, फिर पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, है ना. मोमेंटम को छोटा पी करते हैं, पोजीशन को कैपिटल पी करते हैं. तो सारे चीज की स्टडी एज वेल एज द विल डू वन थिंग. सो द सेंटर, द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, ये भी फाइंड कर सकते हैं, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, सारी चीजें फाइंड करना. द स्टडी मींस द सिस्टमैटिक स्टडी ऑल अबाउट सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यही आपका एटॉमिक फिजिक्स है. क्या मेरी बात क्लियरली समझ में आ रही है? एंड हेवीली वी यूज्ड टू स्टडी ऑल अबाउट आइदर एनी पार्टिकल इज प्रेजेंट इनसाइड द एटम, क्या एटम के अंदर कोई सब एटॉमिक पार्टिकल है, कोई सब स्ट्रक्चर है. सो दैट इज व्हाट इज द होल स्टडी ऑल अबाउट. क्या सब स्ट्रक्चर मीन्स व्हाट, सब स्ट्रक्चर मीन्स अपार्ट फ्रॉम एटम कोई और चीजें अंदर हैं क्या, ठीक है. सो दैट इज कॉल्ड एज द स्टडी ऑफ एटॉमिक फिजिक्स. या नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. My dear kids, the scope of physics also contains with what, also contains with nuclear physics. Nuclear physics. Now what is nuclear physics? Nuclear physics है क्या? It is the branch, it is the branch of physics that deals with the systematic study of high energy radiation and the energy required to, not energy, the force required to transform the form of one material to another, है ना.
So इसकी जब स्टडी करते हैं, what you understood my dear kids, nuclear physics ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ? ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಓದಾನ. What you understood regarding this? Tell me. Have you ever heard about this into your high school days regarding nuclear physics definition? क्या न्यूक्लियर फिजिक्स डेफिनेशंस के बारे में आपने कहीं पे सुना है बच्चों? Anywhere else? Quick response चाहिए फट से. No. In this topic we will study about force branch of physics. Force. Deepa. Okay. If you don't know genuinely, definitely I'm going to explain it. अगर नहीं पता है तो बोल दो सर, नो सर, वी डोंट नो सर. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. चलो. So try to understand my point, my dear kids. Okay, no issues. You know what, my dear kids? चलो पहला हम लोग क्या कर लेते हैं, ये आपका एटम है, ठीक है. So this is the subject of target. ठीक है, subject of target. Here inside it, यहाँ पे क्या होता है? Inside it, it is containing of what? It is containing of nucleus. ठीक? It is containing of nucleus. And मैं आपके सामने दो डायग्राम्स दिखा रहा हूँ. Okay. Now let me tell you. So one small highly energized particle called neutron, when it comes with high acceleration and hit at the subject of target at the nucleus, so there will be a splitting of nucleus into two what? Two constituent particles. ठीक है? So this type of splitting after high energy neutron, which will be going to get collide with the subject of what? Subatomic particle. न्यूक्लियस पे जाके जब हाई एनर्जी न्यूट्रॉन हिट करेगा, इससे क्या होगा? न्यूक्लियस विल बी गोइंग टू स्प्लिट इनटू टू कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. फ्रॉम हियर अगेन these two nuclear particles will be going to split it again. यहाँ पे और स्प्लिट होगा आगे. ठीक है, तो इस तरह का जो स्प्लिटिंग होता है ना, इसको क्या कहते हैं पता है? सो इस तरह के स्प्लिटिंग को वी यूज्ड टू से दैट फिजन रिएक्शन. क्या बोलते हैं हम लोग? फिजन रिएक्शन. दिस इज कॉल्ड एज फिजन रिएक्शन. तो इससे फिजन रिएक्शन बनता है. सी है. सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? फिजन रिएक्शन. क्या क्लियरली समझ में आ रहा है बच्चों मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? This type of splitting is called as fission reaction. So the study of this reaction where the amount of high energy is released high energy in terms of what? In terms of radiation. तो इससे जो radiation निकलता है ना, whatever we are studying, that is called as nuclear physics. Okay, pertaining to this concept, if we are studying the terms heavy water, high energy radiation, gamma radiation, बीटा रेडिएशन, अल्फा रेडिएशन, कूलेंट, ठीक है, ये सारी चीजें है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं. एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज फिजन रिएक्शन. इसको बोलते हैं फिजन रिएक्शन. द रिएक्शन इन विच द एनर्जी इज यूज्ड, द हाई एनर्जी न्यूट्रॉन इज यूज्ड टू हिट एट द न्यूक्लियस टू स्प्लिट इनटू constituent particles. If that reaction continues up to the conservation period, जब तक एनर्जी रहेगी तब तक स्प्लिट होता रहेगा, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज फिशन रिएक्शन. ठीक है, तो इसमें भी जो लॉज ऑफ कंजर्वेशन है ना, वो फॉलो अप होता है. इट विल बी नॉट गोइंग टू मेक अनलिमिटेड, कहते हैं ना अनलिमिटेड रिएक्शंस ऐसे ही नहीं होते जाएंगे, वरना तो पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी. ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे फॉलो अप होता है, कंजर्वेटिव लॉस. ओके, फॉर द फ्यूजन रिएक्शन, तो ये तो हो गया. And this reaction application is used in the atom bombs. किसमें यूज होता है इसका एप्लीकेशन? एटम बॉम्ब्स में.
and to compose those atom bombs, it has used into the Hiroshima and Nagasaki. तो little boy and fat boy था ना, to make that, the application of this reaction has been used. Okay. Okay. Another thing will come, Tsar bomb, Tsar bomba. Okay. So this is Russian explosion, Russian explosion. Fine. ये रशियन एक्सप्लोजन क्या है सर? एक्सप्लोजन, ओके ठीक है. सो दिस टाइप ऑफ बॉम्ब इज डिफरेंट बॉम्ब. ये भी बॉम्ब है, ये बहुत ही ताकतवर बॉम्ब है. दिस इज 1000 times or 2000 times stronger than this type of fission reaction. Okay, so this is not atom bomb, this is called as hydrogen bomb, where thermonuclear reaction will takes place. Thermonuclear reaction. तो हाइड्रोजन बॉम्ब था, फर्स्ट हाइड्रोजन बॉम्ब. It was tested by Russia. At that time, it was called as Soviet Union. Soviet Union. And the short form for Soviet Union was USSR, Union Soviet Socialist of Russia. Okay. तो इसका ये जो एक्सप्लोजन था ना, it was thermonuclear explosion. And the type of bomb was what type of bomb? Hydrogen bomb. Very strong bomb. ठीक है. And what type of reaction was used into this? इसमें जो है ना, फ्यूजन रिएक्शन यूज हुआ था. फ्यूजन रिएक्शन वेरी डेंजरस इट इज. ठीक है. सो बेसिकली फ्यूजन रिएक्शन कैनॉट बी कंट्रोल्ड. अगर उसको कंट्रोल नहीं किया गया, सो देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ जितना हम एक्सपेक्ट किए रहे थे ना, उससे ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकता है. द डिस्ट्रक्शन ऑफ द अर्थ विल बी ग्रेटर in greater amount, whatever we are expected, whatever we are predicted. Okay, so in this nuclear fusion type of reactions were used. तो ये एक कहते हैं ना, it's a prediction of some scientists that nuclear fusion like reaction is used into the thermonuclear explosion of the Tsar bomba from Russia. Okay, तो यूएसए साइंटिस्ट लोग बोलते हैं ऐसे. ठीक है. तो what is that basically? It is, you know, two nuclei is used, the energy used to fuse the two nuclei into single nucleus. जब इन दोनों न्यूक्लियस को जोड़ा जाता है, okay, two nucleus will be fused by using the energy, will get another nucleus, ठीक है ना. So after becoming single nucleus, what will get? Wait. Will get high radiation from this. And what type of radiation it is? किस तरह का radiation हो सकता है ये? So this radiation is nuclear fusion reaction radiation. ठीक है ना. इस radiation को क्या बोलते हैं? Nuclear fusion reaction radiation. It is also called as high energy radiation. ठीक है. इससे जो एनर्जी मिलती है ना, बहुत ही ज्यादा एनर्जी होती है. Fine. And this type of reaction is called as nuclear fusion reaction. Fine. तो इसके बारे में जो स्टडी करते हैं, इन सारी चीजों के बारे में जो स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर फिजिक्स, है ना. सो विद दिस ठीक है. तो न्यूक्लियर फिजिक्स में हम लोग क्या कर लेते हैं पता है? वी यूज्ड टू मेक दिस कंटेंट सेपरेट. इस कंटेंट को हम सेपरेट करते हैं. ऑल्दो this is the section of the nuclear physics, but इसको separately study करते हैं. Okay, and that study is called as quantum mechanics. Quantum mechanics. ठीक है ना. चलो, तो quantum mechanics होता क्या है? What is quantum mechanics? This is also one of the scope of what? Physics.
It is the branch of physics that deals with the systematic study of Kiran Hijeri, close the video. Systematic study of फंडामेंटल, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, फंडामेंटल और एलिमेंट्री पार्टिकल्स, elementary particles in the state of rest or motion. Sir, you are saying that that section of the nuclear physics is meant for quantum mechanics. लेकिन यहाँ पे तो थोड़ा definition अलग लग रहा है कि fundamental बोल रहे हो आप, elementary बोल रहे हो. Okay, let me tell you my dear kids, first of all fundamental and elementary दोनों का meaning एक ही है. Fine, first of all you just try to understand this. And another thing with this, और एक चीज बताना चाहता हूँ, if the fundamental particles either in the state of rest or in the state of motion, ठीक है, तो तब उसकी जो स्टडी करते हैं that is quantum mechanics. Okay, say for example एक आपने मटेरियल लिया है आयरन, ठीक है, आयरन, and you want to convert this into gold. क्या मैं बात जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको समझ में आ रही है बच्चों? गोल्ड, मैं आयरन से इसको गोल्ड बनाना चाहता हूं, आयरन से क्या बनाना चाहता हूं? आर्टिफिशियली गोल्ड बनाना चाहता हूं. सर हाउ इट इज पॉसिबल सर, हमने सुना ही नहीं कभी. इट इज पॉसिबल इन केमिस्ट्री माय डियर किड्स, ठीक है. तो हमको इम्बैलेंस करना पड़ेगा नेचर ऑफ द मटेरियल को. एलिमेंट्स इफ यू आर टेकन फ्रॉम आयरन टू गोल्ड अगर चेंज करना है तो इसके जो साइजेस होते हैं ना, साइज ऑफ द एटम्स ऑफ द एलिमेंट कॉल्ड आयरन, वो साइज और गोल्ड के साइज, मान के चलो गोल्ड के जो एटम्स हैं दीज आर लार्जर, बिगर हैं, मान के चलो फॉर एग्जांपल, हमने कहाँ देखा है वो, एंड द एटम्स प्रेजेंट इनसाइड द आयरन आर इन स्मॉलर इन साइज, ठीक है. तो ये तो चेंज हो गया सर साइज. ड्यू टू दिस चेंज इन साइज ऑफ द एटम्स द फॉर्म ऑफ द मेटल और द फॉर्म ऑफ द एलिमेंट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड. तो किसी भी एलिमेंट का शक्ल अगर लोहे जैसा है, मतलब लोहा ही है, इट इज ड्यू टू द साइज ऑफ द एटम. शेप तो सारे स्पेरिकल रहेंगे, द साइज इज स्मॉलर, एंड फॉर द गोल्ड वी हैव कंसिडर्ड इट एज अ लार्जर, ठीक है. तो क्या आप साइज बड़ा करने वाले हो सर? वी कैनॉट डू दैट, हम लोग वो चीज नहीं कर सकते. लेकिन जो आर्टिफिशियल गोल्ड बनाने वाला हूं, आर्टिफिशियल गोल्ड आई वांट टू मेक टू द आयरन, how it is possible, how it is possible, you know, with the help of quantum mechanics, or quantum mechanics only by theory, लेकिन practically chemistry ही चाहिए वहां पे. If you want to change, if you want to disturb the internal composition of the nucleus, nucleus का अगर internal composition आप chemistry के through reaction करके change करते हो, definitely iron becomes gold, ठीक है. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रहता है ऑफ द आयरन. सो उस टेम्परेचर से उसको या तो ड्रॉप करना पड़ेगा या तो इंक्रीज करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे. तो तब क्या होगा, इट विल चेंजेस फ्रॉम आयरन टू गोल्ड. तो कोई भी मटेरियल को आप उसका टेम्परेचर पर्टिकुलर गोल्ड के टेम्परेचर पे जाके गर्म करते हो. सो इट इज समवॉट लाइक दैट इन केमिस्ट्री, ठीक है, ऐसी थ्योरी है. सो वी आर नॉट गोइंग टू गो इनटू वेरी डीप, ठीक है. तो बस आपको एक बेसिक आइडिया बता रहा हूं. तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाके आप उसको हीट करते हो फॉर द आयरन, इट विल बिकम गोल्ड. ओके परिजन, विल यू क्लोज द वीडियो? ओके, सो लिसन अप व्हाट वी आर गोइंग टू डू. तो यहाँ पे क्या चल रहा है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स बोल रहे हैं. तो दिस विल आई विल एक्सप्लेन इट लेटर. फर्स्ट ऑफ ऑल
इन चीजों को देख लेते हैं, ये फंडामेंटल पार्टिकल्स और एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या होते हैं, ठीक है। सो डिपेंडिंग अपॉन द, चलो फंडामेंटल लिख लेते हैं फर्स्ट, बोथ आर वन एंड सेम, फंडामेंटल और एलिमेंट्री पार्टिकल्स। Okay, so these are one and same, fundamental and elementary. And so listen up, my dear kids. Here I have chosen gold, not gold, iron, है ना, iron. So I have to convert in terms of what, gold banana है इसको. Fine. So the sizes of the atoms छोटे हैं, smaller, ठीक. And the sizes of the atoms into the gold is larger. This is only for consideration sake. फिर आप साइजेस कंपेयर मत करते बैठना केमिस्ट्री लेके, ठीक है। सो ओनली फॉर कंसिडरेशन सेक, फिजिक्स में कंसिडरेशन बहुत ज्यादा होता है, कंपैरिजन, कंसिडरेशंस, टू बोलते हैं कि इमेजिन करो, लाइक दैट। ओके, सो माय डियर किड्स लिसन अप, आई वाज टेलिंग अबाउट फंडामेंटल, ठीक है ना, फंडामेंटल और एलिमेंट्री पार्टिकल्स। ओके, आई वाज टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स, राइट। Now let me tell you one thing, apart from these two terms, ये छोड़ के आपने और एक टर्म सुना होगा, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस टर्म, सब एटॉमिक पार्टिकल्स? कितने लोग ये टर्म को जानते हो? Is my okay? Is my voice is okay? Yeah. So listen up. Subatomic particles ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತದರಿ? ಕೈ ಎತ್ರಿ. How many of you know that what is subatomic particles? Quick. Okay, proton, neutron, electron, है ना? Proton, neutron, electron. So why we used to call this as subatomic particle? क्योंकि Priyanka, will you close the video, beta? Okay, so this is atom, okay, and it is carrying what? It is carrying nucleus, okay. So this is nucleus, right? तो इसमें ब्लैक कलर का होगा ना, तो इसको क्या करते हैं, वी यूज टू कॉल दिस एज प्रोटॉन। जो ब्लैक कलर का पार्टिकल है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज प्रोटॉन। चलो, इसको मैंने प्रोटॉन बोला, है ना। एंड वेट, थोड़ा इसका भी साइज बड़ा कर लेते हैं। चलो, इसका भी साइज बड़ा कर दिया। एंड या प्रोटॉन, अंदर जो ग्रीन नहीं, ब्लू कर लेंगे यूज, वी आर गोइंग टू यूज ब्लू। सो द ब्लू कलर वाला, इसको क्या करते हैं, वी यूज टू कॉल इट एज न्यूट्रॉन। इसको न्यूट्रॉन बोल लेते हैं, है ना, न्यूट्रॉन। एंड व्हाट अबाउट इलेक्ट्रॉन सर? इलेक्ट्रॉन्स का भी तो बताइए आप। चलो, ये आपके ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो इसको क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू टेक छोटा वाला ब्राउन कलर वाला, वरना पिंक कलर ले लेते हैं, ठीक है ना। सो टू शो सिंपली इलेक्ट्रॉन, दिस इज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वेट, सो दिस इज इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन्स है ना। सो इज इट विजिबल माय डियर किड्स? क्या मैं क्लियरली आपको दिखा पा रहा हूं ये डायग्राम? ओके, सो दिस इज एटम, ये तो आपका एटम है, एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन, राइट। एंड black color masses are protons, ठीक है, and the blue color is neutron. So can we call this as subatomic particles? And the particles, yeah, the particles which is the part of the substructure of the atom. मैं जो बोल रहा हूं वो समझने की कोशिश कीजिए। the particles which is the part of the substructures of the atom. एटम का जो सबस्ट्रक्चर है ना, उसका पार्ट है जो पार्टिकल्स, उसको सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं, ओके।
and the particles which is not the substructure of any particle are called as fundamental or elementary particles. क्या मैं जो बोल रहा हूं आपको समझ में आ रहा है? कोई भी पार्टिकल का अगर ये पार्टिकल सबस्ट्रक्चर ना हो, मींस इनसाइड दैट, मींस द पार्टिकल्स व्हिच इज नॉट हैविंग सबस्ट्रक्चर इनसाइड इट, तो उसको हम क्या कहेंगे? those particles are called as fundamental or elementary particle. Okay, so let me tell you one thing. So यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? You peoples are seeing, आप क्या देख रहे हो? Wait, I'll take black color. चलो black color ले लेता हूँ. Okay, so inside proton I will put 2 arrow mark ऐसे black color से. Okay, and with 1 red color ऐसे नीचे एरो मार्क डालूंगा. ठीक है? सो दीज आर ऑल्सो पार्टिकल्स, लेकिन ये पार्टिकल्स है ना, इसको ऊपर जो मैंने ब्लैक कलर से दिखाया है, दीज आर कॉल्ड एज अप कॉर्क्स. क्या बोलते हैं इसको? अप कॉर्क्स. एंड द डाउन एरो मार्क इज कॉल्ड एज डाउन कॉर्क. सो दीज टू आर पार्टिकल्स. अगर 2 अप कॉर्क्स हैं, सिंगल डाउन कॉर्क है, सो दैट पार्टिकल इज कॉल्ड एज प्रोटॉन. And inside cork there will be no substructure. उसके अंदर कोई substructure होता नहीं है. Are you getting my point, my dear kids? प्रोटॉन बनने के लिए 2 अप कॉर्क चाहिए, एक डाउन कॉर्क चाहिए, है ना? एंड अप कॉर्क हो या डाउन कॉर्क हो, उसके अंदर कोई पार्टिकल्स नहीं होते हैं. No substructure will be there. So that is why those particles are called as fundamental or elementary particles. क्या मेरी बात क्लियरली आपको समझ में आई? Okay, here is also what? Proton. तो मैंने रेड कलर से एक डाउन कॉर्क दिखा दिया, और कितने अप कॉर्क्स दिखाने चाहिए यहाँ पे? 2 अप कॉर्क्स. ओके, नाउ विद दिस वेट, यहाँ पे न्यूट्रॉन है. सो इन द न्यूट्रॉन व्हाट आई एम गोइंग टू शो यू, एक ब्लैक कलर से दिखाऊंगा, यहाँ पे भी एक ब्लैक कलर से दिखाऊंगा, एंड with the red color I'm going to show you 2 down quarks, है ना? 2 down quarks. If the composition of these quarks inside the neutron with the 2 down quarks and 1 up quark, that particle is called as neutron. तो neutron का कैसे है बच्चों? So neutron का if the up quark is single and down quark is double, तो इस तरह के पार्टिकल को क्या कहते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल को न्यूट्रॉन कहते हैं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट, माय डियर किड्स? तो कॉर्क, अगर 2 डाउन कॉर्क किसी पार्टिकल के अंदर है एंड 1 अप कॉर्क विल बी देयर, सो दैट इज कॉल्ड एज न्यूट्रॉन. एंड 2 अप कॉर्क्स विल बी देयर इनटू 1 पार्टिकल एंड सिंगल डाउन कॉर्क विल बी देयर, दैट इज कॉल्ड एज प्रोटॉन, है ना? आर यू गेटिंग माय पॉइंट, माय डियर किड्स? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिफरेंस पता चला? नाउ लेट मी टेल यू कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स, फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन से बन गए? दीज कॉर्क्स. एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से बन गए? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. एंड वन थिंग आई वांट टू टेल यू, द पोजीशन ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कैनॉट बी चेंज्ड. उसको हिलाया नहीं जा सकता. it will be stationary. Only electrons are revolving into the atom, but the position of the quarks can be changed. मेरी बात समझने की कोशिश करो बच्चों. Position of the quarks can be changed. तो जब आप समझो inside one particular atom, if you want to increase the number of protons, जो समझो गोल्ड में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहते हैं, अगर आयरन के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतने ही बनाए जाए, सो आयरन कैन चेंज द फॉर्म इनटू गोल्ड. इट शुड बी डन आर्टिफिशियली. तो उसको आर्टिफिशियली आपको बनाना पड़ेगा. कैसे? क्योंकि न्यूट्रॉन को आप क्या बना देते हो? सिंपली बाय शिफ्टिंग फ्रॉम वन न्यूट्रॉन टू अनदर न्यूट्रॉन. क्या करोगे? तो यहां पे एक्सचेंज करोगे. एक्स्ट्रा आप क्या करोगे? कॉर्क्स को ऐड करोगे. when you are adding the quarks, that will become what? That will become proton. तो यहां से समझो एक आपने क्या हटा दिया? You have removed one down quark and you are adding up the up quark.
How it can be done? It can be done by increasing the enormous amount of heat. So enormous amount of increasing enormous amount of heat. Okay. तो ये किसका पार्ट है? दिस इज द पार्ट ऑफ न्यूक्लियस. सारा रिएक्शन कहां पे हो रहा है? सारा चीज इट इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस. तो ये क्या बन गया? न्यूट्रॉन छोड़ के प्रोटॉन बन गया. इफ एक्स्ट्रा अप कॉर्क इज एडेड, डाउन कॉर्क को रिमूव करके. सो इफ यू पुट दिस इनटू पर्टिकुलर कंडीशन, जैसे कि केमिस्ट्री में कहते हैं पर्टिकुलर कंडीशन रख के उसको हीट किया जाए. सो इफ यू डू दैट दिस विल बिकम प्रोटॉन. अगर आयरन के जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, इफ यू कन्वर्ट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द गोल्ड, अकॉर्डिंग टू क्या, जिसको आप कहते हो एटॉमिक नंबर, है ना. सो इफ यू इक्वलाइज द एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन टू गोल्ड, मतलब आयरन के जितने भी हैं अगर ज्यादा है गोल्ड से तो कम किया, अगर कम है तो ज्यादा किया, तो क्या होगा? यू विल गेट द एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड. सो तब फॉर्म क्या होगा? आयरन से गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा. सो दिस इज, ये एक थ्योरी है केमिस्ट्री में, ठीक है. तो इसको बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया है, बट दिस इज नॉट इजी. उतना इजी नहीं है जितना ये चीजें समझते हैं हम लोग. आई एम टेलिंग इट, आई एम एक्सप्लेनिंग यू, आई एम मेकिंग द एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स. तो कैसे किया जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली इट विल बी डन इन केमिस्ट्री ओनली, इट विल बी नॉट डन इन फिजिक्स. क्या मेरी बात क्लियरली समझ में आ रही है? सो दिस इज व्हाट, बहुत सारे चीजें हैं क्वांटम मैकेनिक्स में स्टडी करने के लायक. दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल. दीज आर वेरी हेवी थिंग्स. एक्चुअली ये आपको मुझे यहाँ पे नहीं बताना चाहिए. दीज आर वेरी मच हेवी. ये बहुत ज्यादा हेवी है, इजीली उतना अंडरस्टैंड नहीं होते हैं. ओके. रिसर्च फील्ड में रहते हैं ना, दे यूज्ड टू स्टडी दीज थिंग्स. इवन दो इफ यू सर्च इनटू द बुक्स, बहुत कम बुक्स में आपको ये चीजें मिलेंगी. या चलो, स्कोप ऑफ फिजिक्स का मैंने पहला पॉइंट समझा दिया विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रीम्स. आई थिंक 1 minute is remaining. I'll do one thing. क्या मैं एक्स्ट्रा 5-6 minutes ले सकता हूँ till up to 150? So to complete 3 points. If you say yes, I will continue. If you say no, okay. So listen up, my dear kids. So the next scope of physics we are going to study all about is from atomic phenomena to astronomical phenomena. ठीक है ना. तो इसका एक रेंज आता है बच्चों. सो वी आर टॉकिंग इन द रेफरेंस ऑफ लेंथ. तो हमारा रेफरेंस क्या है? द पैरामीटर इज लेंथ. सो द ऑर्डर ऑफ द, इन द ऑर्डर ऑफ द लेंथ हम लोग एटॉमिक फिनोमिनास और एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिनास का पढ़ाई करते हैं. So the order of the length will be somewhere around 10 raised to minus 15 meter. So what is this, sir? So this is nothing but the radius of the nucleus. है ना? क्या है ये? The radius of the nucleus. So the order of the radius of the nucleus we are studying, that is 10 raised to minus 15 meter. यहाँ तक हम पढ़ाई start करते हैं. Means we are simply showing the boundary of the स्कोप ऑफ फिजिक्स, कहां तक फिजिक्स पहुंचा हुआ है. ठीक है ना. सो यहां तक पहुंचा हुआ है. एंड अनदर थिंग, द रेडियस ऑफ यूनिवर्स. ठीक है, रेडियस ऑफ यूनिवर्स कितना है? रेडियस ऑफ यूनिवर्स, चलो सिंबल को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लिखते हैं. रेडियस ऑफ यूनिवर्स ऐसे भी लिख सकते हो. दिस इज नॉट प्लस साइन, आप लोग प्लस समझ लोगे इसको. दिस इज नॉट प्लस साइन. सो दिस इज ऐसे. यूनिवर्स इज डिपिक्टेड, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, जो हमारे
आई को विजिबल है, ऐसे लिख सकते हो, और यू कैन सिंपली राइट एज रेडियस ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। सो द ऑर्डर इज 10⁻26 मीटर, ठीक है। तो हमारा जो अर्थ है, इट इज द पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम, है ना, सूरज को इर्द गिर्द घूमता है, एंड दिस इज वन ऑफ द स्टार। तो स्टार का नाम क्या है, सन है। तो सन जो है मिल्की वे गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी कैसी है, ऐसी है। तो ऐसे बहुत सारे क्या हैं, मिल्की वे गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी समवॉट लाइक दिस, ऐसे है। एंड यूनिवर्स का भी कुछ फॉर्म ऐसा ही है, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, फॉर्म ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। थोड़ा सा लंबा चौड़ा ऐसा है मिल्की वे गैलेक्सी, एंड नंबर ऑफ गैलेक्सीज आर प्रेजेंट इनटू दिस यूनिवर्स, ठीक है, जैसे मिल्की वे, एंड्रोमीडा एंड बहुत सारे, ठीक। So the radius of this is 10⁻26 and the diameter of the universe is 10⁻52 से लेके 53 तक, ठीक है, इतना है, इतना है कहते हैं, ज्यादा कम। So how it is calculated, sir? ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है? It will be done with the help of कहते हैं ना कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक रेज, विद द हेल्प ऑफ कॉस्मिक रेज ये सारी चीजें किए जाते हैं। बाय टेकिंग टेलीस्कोप, एक पर्टिकुलर स्पेशल टाइप का टेलीस्कोप होता है, उससे वो कॉस्मिक रेज को छोड़ा जाता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइमिंग के लिए। एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, फ्रीक्वेंसी, वी यूज्ड टू फाइंड द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मिलता है तो वेवलेंथ मिलता है, तो वेवलेंथ मिलता है तो डिस्टेंस मिलता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो उसकी जो स्पीड होती है लाइट की, that will be there. So this is one of the scope of the physics with respect to length. And the third one is the scope of physics up to the level of from the atomic masses, है ना, atomic masses to the means reference क्या है, पैरामीटर का मास का है, ठीक है, atomic masses to the universe mass, मास ऑफ यूनिवर्स या यूनिवर्स मास, ठीक है ना। सो इसका रेंज क्या होगा, ऑर्डर क्या है और रेंज क्या होगा। सो द ऑर्डर ऑफ द मासेस इज समवेयर अराउंड 10⁻³ kg से लेके 10⁻55 kg तक। सो दिस इज द मास ऑफ यूनिवर्स, है ना, एंड दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। सो छोटे से छोटे का स्टडी वी आर हैविंग इन द फिजिक्स up to the larger masses. So we are studying all these things into the scope of physics. So these things, length हो गया और आपका ये mass हो गया. Then the fourth point where we are studying the timing. The timing will be the reference, ठीक है, atomic ages to यूनिवर्सल एजेस। यूनिवर्सल एजेस तो नहीं कह सकते यहाँ पे, अप टू द अर्थ एज डाल लेते हैं, अर्थ एजेस, ठीक है, बिकॉज यूनिवर्स एज कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड परफेक्टली। तो एटॉमिक एजेस में द बेसिक पार्टिकल विल बी द फंडामेंटल पार्टिकल, ठीक है ना। सो फंडामेंटल particle, fundamental particles, sir, are you talking about quark? Yes my dear kids, 10⁻⁻12, 10 raised to क्या, wait, 10⁻⁻12 seconds means the life of any fundamental particle कितना रहता है, 10⁻⁻12, sir। तो फिर डाई होता है कॉर्क, अब कॉर्क रहता है वो डाई होता है, नो माय डियर किड्स, एवरी टाइम दो अप कॉर्क एक डाउन कॉर्क है, दिस इज प्रोटॉन, वन अप कॉर्क टू डाउन कॉर्क्स है। तो यहां से एक डाउन कॉर्क यहां पे जंप करने के बाद वन अप कॉर्क विल बी गोइंग टू जंप हियर, तो दिस बिकम्स प्रोटॉन एंड नाउ दिस बिकम्स न्यूट्रॉन। व्हाई, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज होने के बाद कैसे दिख रहा है ये, सो वन प्रोटॉन वन अप कॉर्क टू डाउन कॉर्क, दिस बिकेम व्हाट, ये आपका अभी न्यूट्रॉन बन गया, है ना, पहले ये प्रोटॉन था और ये न्यूट्रॉन था, नाउ दिस बिकेम व्हाट, ये आपके दो अप कॉर्क
ये डाउन क्वार्क, ये प्रोटॉन बन गया, है ना. So every time this is happening, every time. So we used to think that quark, yeah, quark exchanged its place every time it is exchanging. That is why the reason when we are saying that कि यार positive charge और negative charge क्या होता है, attract होता है. Two positive charges means two protons are present inside the nucleus. तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करके फूटना चाहिए न्यूक्लियस. क्या मैं बात सही कह रहा हूं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस. सो न्यूक्लियस को क्या होना चाहिए? इट शुड क्रम्बल. तो वहां से वो फटना चाहिए न्यूक्लियस. सही है ना? बिकॉज देयर विल बी सेम नेचर ऑफ चार्जेस इनसाइड द न्यूक्लियस. क्या मैं बात सही कह रहा हूं? या बट न्यूट्रॉन विल बी देयर. टू न्यूट्रॉन्स रहते हैं तो ये प्रोटॉन क्या बन जाता है? ये न्यूट्रॉन है और ये प्रोटॉन है. इन द नेक्स्ट स्पैन ऑफ टाइम दोनों क्या हो जाएंगे? एनपी हो जाएंगे. मतलब पीएन एनपी, पीएन एनपी. एवरी टाइम प्रोटॉन न्यूट्रॉन चेंज होते रहते हैं. ये भी क्या हो जाएगा? पहले ये क्या था? ये एन था, ये पी था, मतलब ये एन पी, है ना. तो ये क्या बन गया अभी? पीएन फिर से एनपी, पीएन फिर से एनपी एवरी टाइम. तो ये चेंज होने की वजह से क्या होता है? properly proton will not be exist for long time. It will exist only for how much time? 10 raised to minus 12. क्योंकि कॉर्क क्या करता है? फॉर एवरी दिस स्पैन ऑफ टाइम इट इज एक्सचेंजिंग, एक्सचेंज हो रहा है. तो हमको लगता है कि इट इज द एज ऑफ द कॉर्क, इट इज द एज ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल. सो दिस इज द एज ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल हमने बोला. नाउ द अर्थ एज, इट इज 10 raised to 18 seconds. 10 raised to 18 seconds. तो अर्थ का एज इतना है. सर क्या सर इतना ही सेकंड्स में? इफ यू सी इट प्रॉपरली यू विल कम टू नो दैट कितना है वो. इट इज वेरी मच लार्जर. 1 है, 0 है, 0 है, 100 हो गया, 1000, 10,000, 1 लाख. ओके देखो कितना हो गया? 1 लाख. 5 zeros लिखे हैं मैंने. 10 लाख, 1 करोड़. ओनली विद द 7 zeros. 1 करोड़ into 10 raised to 11. अभी भी इतने बचे हैं. अभी देखो कितने होता है? very much larger size of the time. So this will be around 25,000 years. ठीक है, 20,000 या 25,000 years के नजदीक नजदीक होगा वो. The order will be like that. बहुत ज्यादा. So these are the ages of what? Atomic as well as earth ages. So we studied what? Scope of physics. कहाँ तक हम physics को पढ़ाई करते हैं? यहाँ तक physics को पढ़ाई करते हैं. एस्ट्रोनॉमी भी देखते हैं, माइक्रोफिजिक्स भी देखते हैं, मैक्रोफिजिक्स भी देखते हैं, मेसोफिजिक्स भी देखते हैं. ओके, सो इज दैट क्लियर माय डियर किड्स? आई एम गोइंग टू क्लोज दिस क्लास. यहाँ पे हमने स्कोप ऑफ फिजिक्स पढ़ा. सो इन द नेक्स्ट क्लास देयर विल बी न्यू कंसेप्ट, एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स. तो एटम्स क्या है, व्हाट आर एटम्स, एंड what are electrons, what are molecules, ये सारी चीजें रहेंगी. So the next concept will be on excitement of physics. तो क्या मैंने जो भी बोला आपको clearly समझ में आया? If you have any doubts regarding the whatever I explained, तो आप पूछ सकते हो. If not, I will close the class. Take the attendance, my dear kids, Vaishnavi, Rakshita, as well as Pratiksha. Fine. Thank you. If you don't have any doubts means thank you. Thanks for that. Bye my dear kids. तो क्या अटेंडेंस आपने लिया? ओके चलो बाय.